Good morning. This is Surya Yadav from Fluent Spoken Classes associated with Fluent Public School. First of all, you should know about us. We are from Fluent Public School and everything is happening in this coaching due to Fluent Public School. I am here only for you and I want to teach you Fluent Spoken Classes subject literatures. First of all, you should know we have decided to teach you William Shakespeare. First poem name is Venus and Adonis. If you know about Venus and Adonis, so today I will tell you about it very well. I have spoken many times and again I am telling you that I am going to create two videos. First video will be based on English language and second video will be based on Hindi language. Why I am telling you about this again and again? Because some students are asking me frequently, sir, we are not getting anything proper. If you are from UP, Bihar, Jharkhand, etc., this state which is associated from which belong to Hindi belt, so we have spoken in Hindi. We have created many video in Hindi. If you are from out of UP, Bihar and you know good English, if you are also you are in UP and Bihar, but you want to watch my video in English, so we are creating in English and Hindi. Come what may, I will create both video, Hindi and English. It anyhow, if someone is going to tell us about anything, I will never accept it because we are working according to my Bachcha Party, not according to anyone. If you are interested to know about us, so you should know this is Surya from Fluent Spoken. We have done M.Ed from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapit and we are trying to get many things. Right now we are pursuing in PhD from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapit. Today I am an English teacher and I am English student, so everything will be told in English. If you want to know about math, science, so sorry, I am not able to tell you about math and science. I can tell about only English. First of all, you should know about Venus and Adonis. I have written it totally. I am not teaching very simply. In this video, I will speak Hindi. That is why we are going to speak Hindi. Because Hindi is also important for you. This video is based on Hindi. Because first video had been created in English. So it will be in Hindi. So let's start and speak Hindi. पहली बात आपको जानना चाहिए कि मेरा नाम सूर्य है. मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एमएड किया हूँ. मेरा पीएचडी भी वहीं से. समझना चाहिए कि हम कैसे किस दुनिया में किस लेवल पे काम करें और कैसे अपने आप को आ गया. ये फ्लुएंट स्पोकन चलती है, इसका जो सपोर्ट करता है उसका नाम है फ्लुएंट पब्लिक स्कूल. और हम फ्लुएंट पब्लिक स्कूल का धन्यवाद करते हैं, उसने सपोर्ट किया और हम आज इतना आगे आ चुके हैं. अभी ज़्यादा वीडियो नहीं पहुंच पाए हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं हो, लेकिन उम्मीद है एक ना एक दिन हम भी मिलियन में तो आएंगे ही. आज हम पढ़ाएंगे वेनस एंड एडोनिस. लेट्स कम ऑन व्हाइट बोर्ड एंड लुक एवरीथिंग. ये एवरीवन, ये है वेनस एंड एडोनिस. इसको लिखे हैं विलियम शेक्सपियर. बहुत प्यारे हमारे राइटर थे विलियम शेक्सपियर. इनका जो फर्स्ट पोम है वेनस एंड एडोनिस, ये पहले से बोल लीजिए है क्या. विलियम शेक्सपियर का नरेटिव पोम है. क्या है? नरेटिव पोम. ये बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि टीजीटी पीजीटी में यही क्वेश्चन होता है कि विलियम शेक्सपियर का जो वेनस एडोनिस ऑफ क्या नरेटिव पोम. मैं बता दूं आपका, एक और पोम इसके बाद आएगा द रेप ऑफ लुक्रीज. वो भी क्या है? नरेटिव पोम है, जो हमने अपलोड कर दिया है अपने वीडियो पे. अब चाहो तो देख लेना अभी जाके. नरेटिव पोम है वो भी. इसमें स्टैंडर्ड कितना है? 1999, मतलब 199 में. कितना है? 199 स्टांजा है. 6 लाइन प्रत्येक स्टांजा में है. 6 लाइन प्रत्येक जब है. इसका एक 1194, मतलब जब देखोगे तो 1194 लाइंस है. 1194 लाइंस है और इसका राइम स्कीम है ए बी सी सी. दोहरा लीजिए, राइम स्कीम है ए बी सी सी. उसके बाद डेडिकेट किया गया है ऑल ऑफ साउथहैम्पटन पे. जो ऑल ऑफ साउथहैम्पटन इस पे भी है और ऑल ऑफ साउथहैम्पटन है लेप ऑफ लुक्रीज पे भी है. सेस्टा रीमा पे है. ये किस पे है? सेस्टा रीमा डेडिकेट है इसमें. तो बेस है पोम और इसको पब्लिश करे थे रिचर्ड फील्ड साहब ने. कौन किया था? रिचर्ड फील्ड साहब ने. चलिए, इतना इंपॉर्टेंट था हमारे टीजीटी एग्जाम के लिए, पीजीटी एग्जाम के लिए. अब हम चलते हैं पोम की स्टोरी पे. लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड अबाउट पोम. एक समय की बात है, एक लड़का था, उसका नाम था एडोनिस. एडोनिस बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम, बहुत प्यारा, बहुत टैलेंट था. इसकी तुलना किसी भी लड़के से नहीं की जा सकती थी. एक लड़की थी जिसका नाम था वेनस, जो गॉडेस ऑफ लव थी, जो प्यार की देवी थी, उसको प्रेम किससे हो गया? एडोनिस से. आप तो जानते हो आजकल प्यार वार का मोहब्बत बहुत तेज चल रहा है. बस किसी लड़के को देख ले कोई लड़कियां तुरंत प्यार वार में आ जाती है. लेकिन यही हाल हमारे वेनस का था. और इसको बढ़ावा कौन दिए हैं? शेक्सपियर साहब ने ज्यादा. क्योंकि आज ये प्यार मोहब्बत अगर ज्यादा मार्केट में आया तो किसकी वजह से आया? ये सब पोएम की वजह से मार्केट में उतरे. तो वो लड़की तुरंत प्यार कर जाती है किससे? एडोनिस से.
अब वो क्या चाहती थी कि एडोनिस को प्रपोज करना, लेकिन आप जानते हो ना प्रपोज करना इतना आसान नहीं है। डर लगता है कि अगर मैं प्रपोज कर दूं और वो लड़का ना माना तो। ये तो ज्यादा रेयर केस में लड़कियों पे आता है, क्योंकि अभी मेरी एक फ्रेंड थी मुझे बता रही थी कि डर इसी में लगता है। अगर मैं मान लो प्रपोज कर दी और वो फिर एटीट्यूड में आ जाए, नो नो आई डोंट लव एनीवन, आई डोंट नीड गर्ल्स, आई हेट गर्ल्स, फलाने ठिकाने, मतलब बहुत समस्या होगा तो और इंसल्ट हो जाएगा, तो फिर जाकर लोगों से कहेगा मेरी कितनी इंसल्ट होगी, ऐसे वैसे वैसे। तो सेम सोच रही थी कौन, वेनस। लेकिन वेनस ने हिम्मत जुटाया और जाके एडोनिस को प्रपोज किया कि आई लव यू। तो लेकिन जो हमारा एडोनिस था वो क्या था जानते हो, वो बहुत बड़ा हंटर था, मतलब शिकारी था। उसको सिर्फ और सिर्फ शिकार करने की, जैसे कुछ लोग होते हैं अपने गोल से प्यार करते हैं, किसी और से नहीं, क्योंकि गोल जो होता है ना लक्ष्य में बहुत लोग आते हैं। अगर आप सही इंसान हो तो आपसे प्यार करने की लाइन लगी रहेगी, लेकिन आप लोगों से प्यार नहीं करोगे। तो जाकर वेनस कहती है कि आई लव यू एडोनिस, आई कांट लिव विदाउट यू। एडोनिस बोला मरो चाहे जियो, नो दिक्कत मुझे, मैं तुमसे प्यार वार नहीं करूंगा, कि मेरा एक ही गोल है हंटिंग करना, दुनिया का सबसे बेस्ट हंटर बनना है मुझे। और इतना कह के क्या जाता है, वो चला जाता है शिकार करने, किसका, एक गोल में तो सुअर होता है, जंगली सुअर जो बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन जो वेनस थी उसको कई बार बुलाती है, नहीं आती, तो वेनस क्या करती है उसके साथ वो मैं नहीं बोलूंगा, मैं बता देता हूँ, उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन जिसको बोलते हैं सेक्सुअल संबंध या फिजिकली संबंध। लेकिन वो एडोनिस ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो एक तो महिला थी, महिलाओं के साथ ज्यादा बात कर, मतलब ज्यादा आसपास रहना भी लोग गलत समझते थे। एडोनिस ये सब नहीं चाहता था ना, एडोनिस दूर दूर भाग रहा था। तो एडोनिस ने वेनस से छुटकारा पा, लेकिन जब वेनस छुटकारा पा जाता था तो वेनस एडोनिस के ऊपर बैठ जाती है। अब जैसे वेनस एडोनिस के ऊपर बैठती है, एडोनिस को बुरा मतलब कि एक तो गलत बात है ना, कोई लड़की किसी लड़के के ऊपर बैठ जाएगी, तो वो क्या चाहती है समझ रहे हो। एडोनिस ने वेनस को हटा दिया, वेनस को हटा दिया और जाने लगा। तो वेनस क्या करती है, उसके पास ही लेट जाती है, तो सो जाती है और कहती है मेरे साथ प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, मुझे किस करो, फलाने ठिकाने बहुत कुछ करो, ठीक है। तो वेनस क्या बोलता है, वेनस तो चाहती थी, लेकिन एडोनिस को कुछ पसंद नहीं है, क्योंकि देखिए एक बात आपको समझना होगा, प्यार एक तरफा कभी नहीं होता है, प्यार को दोनों तरफा ही किया जा सकता है। आप मुझे चाहो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको ना चाहूं बहुत बात है, क्योंकि आपका प्यार तभी सफल होगा जब आपको वो भी चाहेगा। जैसे सपोज दैट यू लव मी मच बट आई डोंट लव यू एट ऑल, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ यू, आई डोंट लव यू एट ऑल, तो यू कांट बिकम अ गुड लवर, बी लव्ड एक्सेट्रा, यू आर, आप नहीं बन सकते हो। तो वेनस नहीं बन पाते। वेनस ने अच्छा तो एडोनिस उठा, अपना हॉर्स लेता है, हॉर्स कौन था उसका, जो उसके साथ वो शिकारी करता, उठाया जाने लगा। जैसे जाना शुरू किया तो एक क्या थी, गॉडेस ऑफ लव थी। आप जानते हो मंत्र तो जानती थी, बोली नमः स्वाहा, एकलव्य विश्व स्वाहा, प्यार नमः स्वाहा, जैसे प्यार की मंत्र फूकती है, उसका जो घोड़ा था वो भी प्यार में फंस जाता है। और बगल में जो घोड़ी वोड़ी रहती थी उसके अगल बगल जो भी मतलब वो लड़कियां, जेंडर होता है घोड़ों का, मेयर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और उससे प्यार करने लगता है। जब वो घोड़ा अपने लड़की से प्यार करने लगता है तो वेनस बोलती है देखो कितना अच्छा मौसम है कि पशुओं भी प्यार कर रहे हैं, तुम्हारा जो घोड़ा है वो भी तुम्हारे जो घोड़ी है, जो मेयर है, उससे प्यार कर रहा है, देखो अब हम भी प्यार कर सकते हैं। क्योंकि अब कुछ इंसानों से देखो, कैसे इंसानों को प्यार की फीलिंग नहीं आ रही है, फिर भी एडोनिस नहीं मानता और वहां से चला जाता है। और जब ये बोलने लगता है तो ये क्या थी, जो वेनस वो क्या थी, गॉडेस ऑफ लव थी, उसके पास आगे देखने की क्षमता थी। उसने बोला तुम मत जाओ जंगल में, तुम्हें खतरा है, लेकिन वो नहीं मानता है और चला जाता है जंगल में। और उसके बाद तब वो क्या करती है, वेनस को उसका प्यार नहीं मिलता, मतलब थोड़ा रिलैक्स होकर सो जाती है, अपना कहीं चली जाती है। अब आती है सीन पे किसका, एडोनिस का। एडोनिस जाके जंगल में युद्ध लड़ता है, जंगलों को देखता है, सुअर मारता है। जब सुअर मारने लगता है तो ये सुअर बहुत खतरनाक था, उसने अटैक बहुत तेज कर दिया किसके ऊपर, एडोनिस के ऊपर, और वहां पे एडोनिस की मृत्यु हो जाती है। सुबह होता है तो देखती है लिली फ्लावर था, फूल था, वहां पे बहुत कुत्ते भू भू कर रहे थे और आपस में लड़ रहे थे। कौन, कुत्ते मींस डॉग आपस में फाइटिंग कर रहे थे। तो उसको लगा एडोनिस को या कुत्ते भौंक क्यों रहे हैं। जब वो जाके देखती है तो जो लिली के फूल थे व्हाइट व्हाइट, वो क्या हो चुके थे, रेड हो चुके थे, जिससे उसको लगा कोई मर गया। जाकर देखती है तो वहां पे कौन है, एडोनिस मर जाता है। तो एडोनिस को पाके बहुत बेचैन हो जाती है, क्योंकि एडोनिस को अपना शारीरिक संबंध तथा प्यार मानती थी, तथा एडोनिस को दुनिया मान चुकी थी। एडोनिस की मृत्यु के बाद वो नहीं सह पाती है और वो बहुत रोती है और दुनिया को श्राप देती है कि कभी भी किसी का प्यार पूरा नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्यार पूरा नहीं हुआ है। और यहाँ पे ट्रेजेडिक एंड हो जाता है। ये देखोगे तो एक ट्रेजेडी भी पोएम हो सकता है, क्योंकि यहाँ ट्रेजेडी एंड होता है किसका, एडोनिस का। एडोनिस मर जाता है तो वेनस परेशान हो जाती है, वेनस बहुत चाहती है प्यार करना, कि प्यार नहीं हो पाता, अंत में वेनस हार मान जाती है और पोएम इसी पे खत्म हो जाता है। अगर आप प्यार को समझते होंगे तो मैं आपको एक लाइन बोल दूं कि प्यार एक ऐसी चीज है जिसके लिए लड़ा जाएगा। प्यार किसी से नहीं होता है, प्यार ऑटोमेटिक होता है। पहले विचार मिलेगा तभी प्रेम होगा, अगर विचार नहीं मिलेगा तो प्रेम कभी नहीं होगा। प्रेम को राधा कृष्ण के जैसा बनाइए, क्योंकि प्रेम उसी को कहते हैं जो राधा कृष्ण को जैसा है। प्रेम उसको नहीं बोलते हैं जो आज के लोग कर रहे हैं। हमारा प्रेम
बन सकता है एडोनिस और वेनस तरह। ये नहीं कि कोई लड़की किसी से प्रेम करे तो एक्सपोज नहीं कर सकती, जाकर बता सकती है, क्या पता उसका प्रेम किसी और का हो जाए, उससे पहले बताना जरूरी होता है। इसीलिए आपको समझना होगा कि कोई किसी और का हो, किसी को मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे पहले प्रेम को जाहिर करना अथवा प्रेम पे काम करना ही जिंदगी में प्रेम है। भले एडोनिस नहीं मिला लेकिन वेनस का नाम आज भी जिंदा है, किसी उसने एफर्ट किया था। तो मेहनत करना है हमको और पास होना है हर हाल में। आई होप आपको समझ में आया होगा एडोनिस और वेनस का स्टोरी, जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेम पे टिका था। वेनस एडोनिस से प्यार करती थी मगर एडोनिस नहीं प्यार करता था, क्योंकि एडोनिस के पास एक गोल था। लेकिन अंत में एडोनिस की मृत्यु हो जाती है सूअर के शिकार करते समय, लेकिन बाद में देखते हैं वेनस एडोनिस मर चुका तो दुनिया को श्राप देती है कि मेरा प्यार पूरा नहीं, किसी का प्यार पूरा नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। यदि समझ में आया है तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब। लास्ट में बोलते हैं हम लोग, कभी शुरू में नहीं बोलते हैं, सिर्फ आपके लिए। तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज जो रिंग बटन है ना उसको जरूर प्रेस किया करिए, क्योंकि बिना उसको प्रेस का कोई मैसेज ही नहीं मिलेगा। तो प्रेस रिंग बटन एंड गॉट ऑल इंफॉर्मेशंस कि हाउ टू इंप्रूव योर इंग्लिश एंड हाउ टू क्रैक योर टीजीटी एंड पीजीटी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मीट यू ऑन अगेन डे। थैंक यू।